एक सवाल और है इसी के साथ कि कैरी मिनेटी भी मूवी के अंदर देखने को मिले हैं और वो यूथ के बहुत ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं इस टाइम, तो क्या उनका रोल रहने वाला है और नाम चेंज करने के पीछे का क्या रीजन है? कैरी मिनाटी इज देयर इन द फिल्म और बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप देखिए। थैंक यू, आपको दे दे प्यार दे इतनी पसंद आई, बट आपने ये ट्रेलर देखा तो इसमें लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा लव एंगल होगा इसमें। और दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आप देख रहे हैं एनएस मीडिया। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आए हुए हैं सीपी, दिल्ली की जान कहने वाले सीपी में, और यहाँ पे रन अवे 34 का ट्रेलर लॉन्च है सेकंड। तो चलिए आपको सीधा वहीं लेके चलते हैं और जानते हैं कि उनसे क्या सवाल पूछते हैं और ट्रेलर कैसा रहा। निवेदन है कि कुर्सी की पेटी बांध दे क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर फ्लाइट। Runway 34 trailer landing today. Gentlemen, please put your hands together for our very own Singham, Ajay Devgan sir. So welcome to Dilwalo Ki Delhi. It's a pleasure to have you here. Can you please have a mic? Thank you so much. Good evening everybody. Sir, we all have seen the trailer and we have seen both the trailers. They're absolutely exhilarating. I just want to ask you one thing, that you wear so many feathers in your hat and you never fail to impress. In this movie, you're acting, you're directing, and you're also producing this movie. How do you do all of that? कैसे करते हैं आप? I don't know. मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, तो मुझे काम से डर नहीं लगता। I'm never scared of hard work and I love working hard. So I think उस वजह से हो जाता है थोड़ा बहुत। Wow. We should always keep marching ahead and we should always keep up with the hard work. Thank you so much, sir, for this great message. Now, I would like to call the powerhouse of talent here, who has created an impact with all her last performances, and well, she has left us in awe with her character as a co-pilot in this movie. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very gorgeous Rakulpreet Singh. Rakulpreet, welcome to Delhi. You are looking absolutely stunning here today. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Rakul, well, जैसा कि मुझे पता है that you were born in Delhi, right? That's right. So how does it feel to be back here and doing your second trailer launch in the city? It feels amazing. I mean, I've done my high school और college दिल्ली से, और आज जब मैं CP आ रही थी, so I was telling sir कि मुझे ऐसा लग रहा है college के दिन याद आ गए, because it was then back in college we used to come to CP to have chaat. So I got reminded of those days, but it's always wonderful to be back home, and Runway बहुत ही special film है. So the trailer launch of Runway in Delhi is a special moment. Wow, amazing. We're so glad to hear it. Well, Rakulpreet, your character in this movie is looking quite intense. So I would like to know that what all prep went into playing this character? There was a lot of prep. Basically, first where we had a few days of training of understanding the cockpit, because हम लोगों ने real simulator में shoot किया था. We didn't use a set, so it is the real feel of a plane that you all see. So to understand the way that functions, there was a couple of days of training, and then of course we had a captain on set who would make sure that we are using the right language, we are using the right buttons, So yeah, besides that, I think whenever you wear a uniform, आपके अंदर एक sense of dignity आ जाता है. So your walk, your talk, your everything changes, and these are the things. And rest, when I had a director like Ajay sir guiding us through all of it, it was just easy to get into the character. Wow, amazing. Just one last question to both of you. First of all, Ajay sir, what do you like better? Playing the actor or the director? I can't choose. You can't choose. No, I really can't choose. I love both. I really love both. And we love you in both the roles. Thank you so much. And Rakulpreet, Ajay sir as a co-actor or the director? Why are you throwing me under the plane? Not the bus here. I don't think I can again make choose one. I think he's terrific, and I have to say that Sir's technical brilliance is just amazing. I don't know how he does it. You asked that question of donning multiple hats. I was in awe while I was shooting to see how he was doing this, because it's a very difficult film to shoot. Right. All right. I know that our media is all set to ask their questions, so we are opening the house for media. Yeah. So by the raise of hands, I guess we are taking the first question from here. Can you please have the mic? Yeah.
हाँ एक ऐसे नहीं आप हाथ उठाइए, मैं माइक जो है आपके पास आ जाएगा। राजू Let's start it with the sir in blue. सर एक ये आगे इधर से कौन है? इधर हेलो अजय सर, हेलो सर, मेरा नाम डिम्पल भारद्वाज है। क्वेश्चन ये है सर कि मूवी का पहले नाम मेडे था, जहाँ तक मैं सही हूँ, क्यों मूवी का नाम रनवे 34 किया गया? और एक सवाल और है इसी के साथ कि कैरी मिनेटी भी मूवी के अंदर देखने को मिले हैं और वो यूथ के बहुत ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं स्टैंड, तो क्या उनका रोल रहने वाला है और नाम चेंज करने के पीछे का क्या रीजन था? नाम चेंज करने के पहले ये रीज़न था कि पहले हम चाहते थे मेडे हो टाइटल, बिकॉज मेडे का मतलब होता है कि जब एक इमरजेंसी, एक लास्ट होप रहती है, यू कॉल मेडे कि वी आर गोइंग इन, एंड बट लोगों को मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा मेडे का मतलब। मुझे किसी पढ़े लिखे आदमी ने एक सवाल किया था कि मेडे का मतलब क्या है, जो काफ़ी पढ़ा लिखा था, उसने मुझसे पूछा कि क्या ये लेबर डे पे फिल्म है, तो वहाँ से मैं डर गया थोड़ा। तो और रनवे 34 फिल्म की पूरी कहानी एक्चुअली रनवे 34, अगर आप हर एयरपोर्ट पे देखें तो नंबर्ड होते हैं रनवे, तो 34 जो रनवे है उस पर कैप्टन ने क्यों लैंड करने की कोशिश की, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था, जो नहीं होना चाहिए था टेक्निकली। तो कहानी उसके इर्द गिर्द है, इसलिए आई थॉट द सेकंड बेस्ट ऑप्शन वाज रनवे 34। कैरी मिनाटी इज देयर इन द फिल्म और बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। हेलो सर, I'm कानन फ्रॉम एनबीसी हिंदी न्यूज़। आज सर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप इस मूवी में एक पायलट बने हैं, तो आपने इस मूवी के लिए किस टाइप की ट्रेनिंग ली होगी? जैसा कि रकुल ने बताया कि काफ़ी कुछ समझना पड़ा था, हमारे पास ट्रेन करने के लिए कैप्टन थे। अब इतना कुछ सीख चुके हैं, प्लेन तो थोड़ा बहुत उड़ा ही लेंगे हम लोग। लैंड करेंगे कि नहीं पता नहीं। लैंड करेंगे कि नहीं पता नहीं, बट थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। बट काफ़ी कुछ सीखना पड़ा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स, कौन सा स्विच कैसे उड़ाते हैं सब, एंड क्योंकि आई वांटेड टू कीप एवरीथिंग ऑथेंटिक, तो एक कैप्टन और एटीसी से भी कुछ लोगों उनसे हमने सपोर्ट लिया, हेल्प लिया। सो यस सर। हेलो अजय सर, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से। कहाँ हैं आप? सर ये देखिए सर, मेरा आपसे सवाल है कि एक टाइम पर जो आप पायलट का रोल प्ले कर रही हैं और उनके साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन करना होता है, जो टीम बैठी होती है ग्राउंड पे, तो उनकी जॉब को सबसे ज्यादा टफ माना जाता था और बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है आज भी उनके ऊपर, और ऐसी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं जहां पर एक फ्लाइट क्लैश कर गई या कुछ भी। तो आपने इस चीज को कितना डीपली समझा? काफी डीपली। हमारी फिल्म में अगर आप देखेंगे तो हमारी फिल्म में जितना काम प्लेन के अंदर है उतना ईटीसी में भी है, और ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी है हमारी फिल्म में। तो आई थिंक एक कैप्टन के लिए और एटीसी दोनों के लिए आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी एक गलती भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और सर अमित सर के साथ आपके बॉन्डिंग कैसी रही है? बहुत टाइम बाद आपने साथ में काम किया, आप ज्यादा नर्वस थे या सर ने, मतलब कैसा रहा उनका रोल? नहीं, वो किसी को नर्वस होने नहीं देते। वो हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं। आप अगर रकुल से भी पूछें तो आई थिंक उस जैसी मेहनत, उन जैसी लगन हम में से किसी के पास नहीं है। और जब आप उनके साथ काम कर रहे होते तो ही इंस्पायर्स टू डायरेक्ट यू। सो बाकी जो मेरा उनका राप हुआ है, मैं बचपन से उनको अच्छी तरह जानता हूँ और हमारा एक बहुत अच्छा राप हुआ, तो वो नर्वसनेस कहीं आई नहीं, बट या ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन। Hello, sir. Sir, this is Sathak from Entertainment Reports. My question is for both of you. One thing you like and one thing you tolerate about each other on set. Like and tolerate. Yes. I mean, there's everything to like about Sir's, way of being. I think his dedication. I just love it how passionate he is about his work. And tolerate वाली ऐसी कोई बात है नहीं. So I don't think I can. आई थिंक आप जब फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि रकुल ने इतना अच्छा काम किया है। शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब इन फिल्म, और बहुत मुश्किल कैरेक्टर है इनका। सो दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हर, द वे शी वर्क्स, द वे शी परफॉर्म्स।
एंड बाकी शी इज़ डिसिप्लिन, शी इज़ ऑन टाइम, तो ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो टॉलरेट करनी पड़े। हेलो, राजेश फ्रॉम दिल्ली 19 सर है। मेरा आप दोनों से एक सवाल है। रकुल, पहला तो आपसे कि दे दे प्यार दे में आपकी जो लव एंगल था, जो भी लव एंगल था, लोगों को काफ़ी पसंद आया था, और यही वो भी थी कि मूवी इसीलिए चली थी, आप दोनों की जो लव केमिस्ट्री उसमें दिखी थी। आप फिर से एक बार आ रहे हैं दोनों एक साथ, तो क्या वही एंगल फिर से इस मूवी में भी देखने को मिलेगा? और अजय सर, आपसे एक सवाल है कि आपने पायलट के काफ़ी सवाल ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे भी, न्यू जनरेशन भी काफ़ी इंस्पायर्ड होती है इस तरह की, जिस तरह की पायलट की मूवी आप ये आ रही है, तो क्या नए बच्चे भी इससे इंस्पायर्ड होंगे पायलट बनने के लिए आगे आने वाले समय? थैंक यू, आपको दे दे प्यार दे इतनी पसंद आई, बट आपने ये ट्रेलर देखा तो इसमें लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा लव एंगल होगा। इसमें खाली हमारा कंसंट्रेशन प्लेन उड़ाने में है। बट थैंक यू सो मच, एंड आई होप लोगों को जैसे दे दे प्यार दे पसंद आई थी, रनवे उससे भी ज़्यादा पसंद आए। या और आपका दूसरा सवाल, आई होप बच्चे इंस्पायर हो, क्योंकि वी ब्रॉट द एविएशन इंडस्ट्री इन अ गुड लाइट। और ये एक इंसिडेंट 2015 का एक रियल इंसिडेंट है, तो आपको पता चलेगा कि एक कैप्टन को, एटीसी वालों को, सबको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं, इवन पैसेंजर्स को, जब कोई तकलीफ़ हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, हाउ उस टर्बुलेंस से कैसे। बेसिकली आई थिंक ये कहानी सिर्फ हवा में टर्बुलेंस की नहीं है, ज़मीन पे भी है, कि आदमी की लाइफ में जब टर्बुलेंस आता है तो वो कैसे उसके थ्रू गुजरता है और कैसे उसको गोस थ्रू। Hi, this is Shrishti Anand from Cinema Beast here, and my question is for Ajay sir. Sir, while directing, how easy or difficult was it for you to visualize somebody else as an actor, you as an actor? Not very difficult. As in this character, or you're asking me as in this character or other actors also? For everybody, how did you feel? No, when you're working on the script, you're working on the script as a director. So as an actor, you keep getting prepared, and once you're working on the script, then you know exactly the way you want your other actors to be. So I think it gets very, very clear once you start imagining the film and start visualizing the film. हेलो सर, दिस इज इशिका फ्रॉम हिंदुस्तान दर्पण। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप दोनों ने पहले भी काम किया है साथ में, तो इस मूवी की अगर हम बात करें रनवे 34 की, तो क्या आप दोनों के लिए यादगार मोमेंट रहा है कि इस मूवी से जो आप जिंदगी भर याद रखने वाले हैं? आई थिंक फॉर मी द फैक्ट कि मुझे अजय सर की डायरेक्शन के अंदर काम करने का मौका मिला, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अमित जी के साथ काम करने का मौका मिला। आई थिंक फॉर मी दीज आर 2 थिंग्स दैट आई ऑलवेज टेक अवे, बिकॉज मैंने ये पहले भी कहा है कि जब आप एक्टर बनते हैं, आपका सपना होता है कि अमिताभ बच्चन सर के साथ आपको काम करने का मौका मिले, एंड थ्रू दिस फिल्म आई गॉट टू शेयर हिज एनर्जी एंड स्क्रीन स्पेस विद हिम. So I'm forever grateful for that, and this is something that I'll never forget. Hello sir. मुझे नहीं पता क्या यादगार इस फिल्म में है। मैं तो कंटिन्यूसली काम कर रहा था और बिल्कुल वक्त ही नहीं मिल रहा था ये सोचने का कि क्या यादगार है, क्या यादगार नहीं है। नॉट अ वेरी इजी फिल्म टू शूट, सो हेक्टिक से ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही शूट करने के लिए, जैसे आप अगर कॉकपिट भी देखेंगे तो इतने छोटे से कॉकपिट में इतना ड्रामा क्रिएट करना और काफ़ी कुछ विजुलाइज करना, आई थिंक इट वाज वेरी चैलेंजिंग, सो आई वाज जस्ट लिटिल। हेलो सर, मैं अर्पणा न्यूज़ 85। सर, बतौर डायरेक्टर खुद डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? आई थिंक उसका जवाब मैंने अभी दिया। हेलो सर, हेलो रकुल। Ajay Devgan sir, मेरा आपसे क्वेश्चन है, like when the savior becomes a culprit, is it generalized term for the captain of the for the pilot, or was there some particular incident in the film? There is a particular incident in the film. The film also has a kind of a mystery which I wouldn't want to reveal right now. When the savior becomes the culprit, but why does he become the culprit? So for that you need to watch the film, and till the end of the film you will think that you will not be sure that is he the savior or the culprit. Hi sir, this is Pari from Magnetic Media. मेरा सवाल आप दोनों से है
कि जब ये मूवी आप लोग कर रहे थे एज एन पायलट आपने ये रोल किया है अजय सर, तो ऐसी कौन सी सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट आपको लगा कि पायलट की लाइफ में भी होता है जिससे वो सबसे ज़्यादा एक स्ट्रगल करता है? आई थिंक जैसे कि ट्रेलर में कहा कि देखा आपने कि जब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इट्स एन इम्पॉसिबल सिचुएशन, डू और डाई सिचुएशन, तो उस समय इतने सारे डिसीजंस लेना, क्योंकि आपकी एक डिसीजन भी अगर गलत हो जाए तो आपकी जान, आपके पैसेंजर सबकी जान जा सकती है। तो आई थिंक वो डिसीजंस लेना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उस वक्त, बिकॉज वो डिसीजन आपका आखिरी भी हो सकता है। एंड रकुल मैम, आपका कौन सा सबसे हार्ड मोमेंट रहा इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा करने के लिए? I wouldn't say tough लगा, but I would definitely say challenging, exciting. जैसे सर ने कहा कि जो कॉकपिट है वो बहुत छोटा था और उस कॉकपिट के अंदर हम लोग मल्टीपल कैमरास के साथ काम कर रहे थे. There were about 7 cameras, including a Jimmy Jet. And then to recreate, to create turbulence, to create that atmosphere of fear, panic, tension. लेकिन आप रियली प्लेन में नहीं है, लेकिन आप बिहेव कर रहे हैं कि आप प्लेन में. So I think that was very challenging, but it wasn't difficult. It was something which challenged us and we were excited to do it. Thank you. हेलो सर, राजेश सर इधर. सर सर मेरा सवाल है कि आपने फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो हम जानना चाहते हैं कि रकुल जी को जब आपने डायरेक्ट किया होगा तो क्या इनकी तरफ से आपको कुछ परेशानी आई? और रकुल जी से मेरा है कि क्या आपने जो है कि जो इन्होंने डायरेक्ट किया देवगन साहब ने, तो आपको उस समय मतलब कुछ परेशानी लगी, कुछ इनके समझाने में कुछ? आप मुझे बताओ, कुछ ऐसी लगी भी हो, हम दोनों में से किसी एक को परेशानी तो हम इधर बोलेंगे. पहली बात तो बोलेंगे नहीं, दूसरी बात ये है कि बिल्कुल परेशानी नहीं आई. अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप जब फिल्म देखेंगे तो रकुल का जो कैरेक्टर है बहुत ही मुश्किल था, एंड द वे शी इज डन इट, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे. तो आप फिल्म देखिए उसको. हाय अजय सर, straight here. Yeah. Sir, a compliment and a question for you. Compliment is that we loved your performance in RRR. Your screen time was less, but your impact was huge in the movie. Thank you. And the question is, the movies from South are doing very well in North. Audience from the North are liking it. But if I compare Bollywood movies going to the South, the audience is not that much they are liking it nowadays, because the impact of the South movies are huge, especially. नहीं, nothing के यहाँ की फिल्म वहाँ नहीं जा रही हैं, because किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, मुझे लगता है. Nobody's tried to release North, I would say, film down south at a big scale. अगर कभी कोई कोशिश करेगा तो जरूर होगा, because they are also, their films are good, they are doing well here. हमारी फिल्में भी चल रही हैं, and they plan it कि हमको नॉर्थ में भी रिलीज करनी, तो that's why they take actors from the north also, and they plan the script accordingly कि वो pan India चले. Final question: who is your favorite actor from South? If you can tell us. I think all are very good. They are all fabulous actors. Hello, sir. We are just taking last one question from the media. Yeah, please go on. Hello, sir. अजय सर, जैसा कि हमें पता है कि ये जो स्टोरी है, स्टार्टिंग में आपने ये स्टोरी ड्रॉप की थी और कोरोना के टाइम पे ये लगभग ड्रॉप नहीं की थी. तो ये कैसे, मतलब रनवे पर क्लीन कैसे आया आपको वापस? ड्रॉप नहीं की थी. जब भी मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन उनको मैंने राइटर्स को कहा था कि मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, जो मैंने उनको बताया था. और उसके बाद मैं बिजी हो गया, फिर कोरोना हो गया. तो कोरोना में जब हम बैठे हुए थे तब मुझे याद आया कि यार ये कहानी पे हमने काम किया था, तो उनको वापस भी बोला. दैट इज व्हाट आई मेड. Hi, Ajay sir here. Sir, my question is that whenever we make a film, we do a bit of research. So what kind of a research went into this film? Did you speak to the pilot? Did you speak to the passengers? I just told you about that we had captains on our team, we had ATC people on our team. We did a lot of homework and research. And obviously we are inspired by the incident, but we've dramatized it for sure. Hello sir, All right. Shweta, Sahara Samay. So this is definitely going to be the last question. Shweta, hi, where are you? Okay, that's the last question. All right. हेलो सर, श्वेता, सहारा समय न्यूज़ चैनल से. एक लास्ट सवाल है, जैसा कि बता रहे हैं. तो सर सवाल मेरा ये है कि तमाम वो जो रियल पायलट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए, ताकि और भी जो यूथ है देश की सेवा के लिए भी अपना योगदान दे. जी, आई थिंक पायलट्स बहुत कमाल का काम करते हैं. हम
को कोई हक नहीं है उनको मैसेज देने के लिए। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे कैप्टन्स दुनिया भर के, तो उनको कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं, बट दे वर्क इज़ वेरी वेरी टफ। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर सिचुएशन में उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, और एक भी गलत डिसीजन से हम सबकी जाने जा सकते हैं। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम जैसे वो काम करते हैं। Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Now I would request the media to kindly, yes, we are opening the house for the photo op. I would request to kindly come together.